विद ईच अदर की अरेंज मैरिज हो गई, इसलिए कि डिवोर्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कोई किसी को डिवोर्स वहाँ पे करता ही नहीं, बस सारी जिंदगी नाखुश रहते हैं, अनहैप्पीनेस होती है, नाखुश रहते हैं। यहाँ पे ये है कि डिवोर्स करके दूसरी जगह शादी कर लेते हैं बिकॉज इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है ना उसकी बहुत वैल्यू है। एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस नाले ਇੱਥੇ laws ਬਹੁਤ different ਆ ਉੱਥੇ back home ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ abuse ਦੀ definition ਹੀ different ਹੈ। If you cannot have a sex with your wife or husband without that person's approval, even in marriage, you cannot force, you cannot emotionally torture them, you cannot physically torture them, you cannot psychologically torture them. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ it's your husband's right to have you. How can you say no? ये मैरिटल रेप एक और टॉपिक है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ इतना नहीं कर सकते, इतने तुसी समझ नहीं है, you do live here, you know what the rights are. फिर उत्थे इतने divorce rate को compare करना is totally wrong. हाँ, it's totally wrong because it's not that people are happier there. लोग ये नहीं कि वहाँ पे खुश हैं। अच्छा, coming back to the individual happiness, गे की जो हम बात कर रहे थे या lesbians की, इसमें वही बात आ जाती है ना कि individual happiness को अगर आप देखें तो फिर आपको you have to give them their right because as an individual a person has that right कि वो जिसके साथ मर्जी रहें और जिसके साथ मर्जी खुश रहें। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दूसरे लेस्बियंस और गेस को जब देखते हैं तो do you feel more comfortable with them? देखो, first of all I need to explain कि जो gays and lesbian है वो भी कई तरह के, एक कई तरह ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। they are gays and lesbian ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਂਗ ਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ but they like to be a man because they are men। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾ ਦੇਖਦੇ ਫਰਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, they are different। There are a lot of gays who just feel the other sex like other sex but they don't engage in physical anything। तो ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ variations। मतलब I personally don't like to be dressed in like a female. I'm a male, but there are people who like to be dressed like that, so it's nothing कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ comfortable feel करदा because I treat everybody as an individual। Doesn't matter how their sexuality is, doesn't matter to me। None of my business। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि हम ऑटोमेटिकली ये समझ लेते हैं कि जो गे मर्द होगा वो लड़की की तरह होगा। कभी कई दफ़ा होते भी हैं, आपकी बात ठीक है। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि उनके बात करने के अंदाज से आपको पता चल जाता है कि वो गे हैं, आपकी बात के अंदाज से पता नहीं चलता। आपकी बात सही है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। मुझे एक और बात आप मुझे बताएं कि जब आप किसी लेस्बियन को देखते हैं उनमें से एक जो है वो लड़की की तरह उसकी अपीयरेंस होती है, एक थोड़ी सी बॉयश होती है, इसी तरह लड़कों गे मेन में भी इस तरह होता है। आई मीन, डू यू एग्री विद दैट? कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि जैसे like I said, कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि it's a lot of has to do with biological too। We have to go back to why a person is sexually oriented that way। Now a lot of scientists ने कई तरह की studies की थी। Nobody knows why it is, just like nobody knows कि एक आदमी ते औरत की attraction आपस ਵਿੱਚ क्यों हुआ। It has a lot to do with hormones। ਤੁਸੀਂ एक औरत ਨੂੰ like steroids देना शुरू कर दो, आदमी ਦੇ hormone शुरू कर दो, she will have those kind of developments। ਉਹਦੇ ਚ anger ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, testosterone ਦੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, anger ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, she will have masculine features। You never know what's the composition, chemical or biological composition on individuals like us। We are not different। I'm just probably going off the topic, but I am just saying कि वो different topic है। जे तुसी दो males देखते हैं, उन्होंने बच्चे adopt किते हैं, ਇਹ necessarily नहीं है कि one female वांग act करदा ते one male वांग act करदा, कई करदे भी है। but एक जब तुसी फैमिली च रहना शुरू हो जांदे आ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਜਾਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ।
कोई बाहर दे काम करदा, कोई अंदर दे काम करदा. So it's a lot of other variation. I need to say something कि sexual orientation is not just physical relation. लोग जो sexual orientation गल्ला करते हैं वो बस physical relation ही उन्हें दिमाग चांदा. It has emotional aspect, it has romantic aspect. There's a lot that comes with it. That's absolutely true. अकबर ठीक है, ये जो एक अमेरिकन लेस्बियन है, उसको मैंने एलन डिजेनरस ने मेरे ख्याल कहा था कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड लव दीज डेज. तो आप जहाँ भी आपको लव मिल जाता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरों को उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड लव. बट देन दे बिलीव इन लव. हम लोगों को तो लव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना इंडिया और पाकिस्तान में. आई थिंक लोगों को ये भी पता होना चाहिए था कि सेक्स, जेंडर and sexual orientation are three different things. Sex is biological determined. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਗਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਆਰਗਨ ਆ. There are two different things. Now gender is sociological determined. Excuse me. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ determine ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ and which varies from samaj to samaj. Pichhle back home Punjab which gender the definition different tha, US which gender the definition different tha. In otte female certain duties kar sakdiyan, itte female certain duties kar sakdiyan. Now that's a different concept. On Saudi Arabia which gender hor kuch hote women driving kar sakdiyan because you are expected that way by society. Now third thing is sexual orientation. Nobody determines it but the person itself. बंदा खुद डिटरमिन करता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन की है. हुण तानू कोई दस सकता कि ताड़ी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन है. You are what you are. ये थ्री थिंग्स लोगों नू समझ जानी चाहिए कि सेक्स कुदरती है, भी तुसी जो कुदरती तौर ते जमदे हैं. जेंडर भी जब बंदा कोई समझदा भी औरतां ते आदमी अलग अलग, पर वो सोसाइटी दसदी आ. जो औरतां गुड्डियां ने खेलदियां, आदमी की कहते हैं ट्रक्स ना खेलते बच्चे, औरतां दा पिंक कलर आ, आदमियों दा ब्लू कलर आ. ये सोसाइटी ने अपने गल्लां बनाइयां होइयां. There is no reason for it. The third thing is sexual orientation. वो कोई ताड़ी डिटरमिन नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने ताड़ा मन नहीं पता होंदा. आपने बिल्कुल सही बात की है. सारी जो है ना, खासतौर पे जो सोसाइटी जो आपके रोल्स करती है, जो गुड़ियों से खेलने वाली बात है. अब आप एक असल में औरतों और मर्दों में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है. इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. औरतों और मर्दों में ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं डिफरेंट होने की बजाय. ये जो बकवास करते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई औरतें नहीं, औरतें तो होती मुख्तलिफ हैं, औरतों में ये क्वालिटीज़ हैं, मर्दों में ये बात. सारे कुछ एक्सक्यूज़ हैं, कुछ एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें बनाई हैं. बात सिर्फ ये है कि इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. मैं डिफरेंट हूँ अपनी सहेली से, वो और बातें करती होगी, मैं और काम करती होंगी, ठीक है. लेकिन no, men and women are not different. They have more similarities. दोनों आदमी और मर्दों के फिजिकली भी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं. एक ही नाक है, दो आंखें सबकी, दो टांगे, दो बाजू, फिजिकली भी सिमिलर हैं. If you know you're in medical field, you know देखो आपको पता है कि even in embryonic development बाद में महीनों के आदमी का सेक्स डिटरमिन होता है. हाँ, शुरू में It's just a matter of X and Y. The proteins are same, everything is same. हाँ, इसी तरह ख्यालात, आदतें, बिहेवियर डिटरमिन बिल्कुल करते हैं कि सिमिलर. आपके सेक्सुअल ऑर्गन कैसे होंगे, मेरे कैसे होंगे, और डेवलपमेंट में एटलीस्ट. औरतों को जो समझते हैं कि औरतों को इस तरह से रहना चाहिए क्योंकि वो जेनेरिकल इस तरह से, दे आर सपोज्ड टू बी लाइक दैट. दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली और औरतों को बेवकूफ़ बनाने वाली की एक कोशिश है. क्योंकि जब आप किसी, मैं तो यहाँ हम फ्री सोसाइटी में रहते हैं, जब आप लड़कों और लड़कियों को एक तरह से बड़ा करते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली एक तरह से एक्ट भी करते हैं. वो एक तरह से ही चीज़ें पसंद करते हैं, एक तरह से ही हरकतें करते हैं, एक तरह से उनकी आदतें होती हैं. इंडिविजुअल्स की डिफरेंट होती हैं. हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता. लेकिन औरत और मर्द में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है. और ट्रांसजेंडर्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं कि
मेरे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं ट्रांसजेंडर ना, मैंने ओवर द ईयर्स कुछ लोगों को देखा है। तो एक और बात, वही बात कि दे आर स्मार्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई बहुत ही अजीब बात जो मैंने देखी है कि जैसे बहुत सारे मर्द हैं, वो हम ये कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन वो फील ये करते हैं कि वो औरत हैं। तो इट्स रियली वन डे वी विल फाइंड आउट, एक ना एक दिन कोई इस पे रिसर्च करेगा कि जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो पता है देखो कौन नहीं है चोर ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओए एवें दुनिया देवे दुहाई झूठा पाउंदी शोर ते